A very good morning to all. My dear student, today we will continue class 12th history and previous year paper 2020 Delhi. Okay, class 12th history CBSE examination paper CBSE exam My dear student, today we are going to solve the 2020 Delhi CBSE examination paper of history, and also we will try to solve the revision test 9 and 10 syllabus. Dear, as you know that last few days we are discussing the board paper and we have completed the question number 23 and 24 also. We will continue this chapter, but I would like to tell you the one question is that the non-cooperation movement. Non-cooperation movement. Non-cooperation movement. We studied the region. We also studied about the main causes that why Gandhi started the non-cooperation movement. The date was non-cooperation movement was 1921-22, but it was started 1st August 1920. Okay, in NCERT this date is given, but on that day Gandhi started non-cooperation movement. What was the immediate reasons for the non-cooperation movement? I have already discussed about that. The Rowlatt Satyagraha, What was Rowlatt Satyagraha? My dear student, without any hesitation, you can say that Rowlatt Satyagraha, was started by Mr. Gandhi against the Rowlatt Act. What was Rowlatt Act? I have already taught you in my previous class that Rowlatt Act, that was act which was introduced by Sidney Rowlatt, who was judge. According to that, without jury, no trial, no court, no liar, if anyone would have indicated as a suspicious people, he would arrested. Nationalist leader called this bill the Black Bill, but even if it was passed in 1919, in 1917, Rowlatt, that was introduced in the Central Legislative Assembly, and that was passed after little bit time. In 1919, it became act. On the 6th April, Gandhiji decided
that Gandhi decided that oppose this act and started a movement. गांधी जी ने डिसाइड किया 6 अप्रैल को 1919 को एक मूवमेंट चलाएंगे और मूवमेंट को क्या करेंगे वो आई मीन टू से दैट उसका विरोध किया जाएगा। इसी में एक घटना आती है 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मस्कियर Jallianwala Bagh was scared. What happened? I have already taught you on that day the huge amount of the casualty happened. The General Dyer opened fire on the unarmed the mob which was celebrating the Baisakhi in Punjab. This was the reason. That's why Mr. Gandhi decided that we had to start. Gandhi failed. The time that we have to start the more vast movement, and that movement क्या बनाइए? That movement became national movement, non-cooperation movement. और हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन पर चर्चा की। हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन पर चर्चा करते हुए कहा कि किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक नए फेजेस में प्रवेश किया, किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देश की उत्साह चरम पे था। गांधी जी ने कहा आई विल प्रोवाइड यू, आई विल गिव यू इन अ ईयर स्वराज if you will follow my suggestion, if you follow the instructions, non-violence, self-education, I mean to say that कि enterprises start करना, trade start करना, boycott, स्वशिक्षा, स्वशासन, स्वरोजगार और बहिष्कार, 4 चीजों को आधार बनाते हुए इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया। आंदोलन तेजी से बढ़ा, जनता में उत्साह था, जगह जगह नॉन कॉपरेशन के कई मीनिंग्स निकाले गए और इन मीनिंग्स में कुछ जगहों पे, जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि गुजरात में पाटीदार जो किसान थे उन्होंने जो हाई रेवेन्यू उनके ऊपर इंपोज की गई थी उसका विरोध किया। मैंने आपसे कहा कि आसाम में जो चाय की बागानों में काम करने वाले लोग थे उन्होंने इसकी मीनिंग्स अलग निकाली। तमिलनाडु जो काफी दूर का क्षेत्र था भारत का, वहां पे इसकी मीनिंग पिकेटिंग करके उन लोगों ने शराब की दुकानों पे मार्च किया, शराब की दुकानों पे पिकेटिंग की। आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट्री लॉ तोड़े गए। पेशावर में लोगों ने मार्च निकाला। इस तरह से पूरे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तेजी से फैला। जब लोगों का उत्साह चरम पे था उस समय घटना हुई चौरी चौरा की। 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा में किसानों के शांति मार्च के ऊपर पुलिस ने फायरिंग की। बहुत सारे किसान मारे गए, जिससे जनता ने आक्रोशित होकर के थाने को फूंक दिया। 12 फरवरी 1922 इन बारदौली गांधी जी डिसाइडेड दैट दे हैड कॉल्ड ऑफ, दे हैड टेकन बैक दिस मूवमेंट। वो इस मूवमेंट को वापस ले लेंगे। गांधी ने ले लिया। बारदौली में बैठक करने के बाद 12 फरवरी को चौरी चौरा मूवमेंट के कारण उन्होंने मूवमेंट वापस ले लिया। गांधी जी की आलोचना हुई। गांधी जी अब अपने को सक्रिय राजनीति से अलग करके
रचनात्मक कार्यों में जुड़े, हरिजनों उत्थान में जुड़े, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी के लिए काम किया। साथ ही साथ उन्होंने विमेन्स एम्पावरमेंट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, चरखा, इन चीजों पे ध्यान दिया। इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ खत्म होता है। हम ध्यान आज इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो सिविल डिसोबीडियंस उससे कनेक्टेड होगा। गांधी जी के 3 मूवमेंट्स बार बार क्वेश्चन पूछे गए। जैसे सिविल डिसोबीडियंस पूछता है, इट मीन्स यू हैव टू फोकस योरसेल्फ एज ए साल्ट सत्याग्रह। व्हाट वाज साल्ट सत्याग्रह और कैसे ये हुआ, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। और आइए अब इसको देखते हैं कि साल्ट सत्याग्रह क्या था, सिविल डिसोबीडियंस क्या था। साल्ट सत्याग्रह। सो माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन पे बात की, कई बार आपके एग्जाम से पूछे हैं। सेकेंड हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस पे। सिविल डिसोबीडियंस, Gandhi decided that we have to start the civil disobedience. A very prominent statement given by Gandhi ji during that time. एक स्टेटमेंट दिया गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा, पूर्ण स्वराज would never पूर्ण स्वराज would never come on its own. पूर्ण स्वराज would never come on its own. It had to be fight. It had to be fight. गांधी जी का एक स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट के आधार पे अब आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखिए। द स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी दैट द पूर्ण स्वराज would never come on its own. It had to be fight. It had to be fight. इसे लड़के स्वराज्य के लिए लड़ना होगा। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी स्ट्रेंज मैटर। ड्यूरिंग दैट टाइम ब्रिटिशर्स ट्राइड टू डाइवर्ट द इंडियन मूवमेंट। दे हैड गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1919। According to that, the legislatures that had divided in 2 parts, and the work also categorized in 2 parts. Some work for the Indians. If you have remembered the demand of the Home Rule League, then you can easily understand that Britishers play their game in 1919. And after that, what happened in 1929? After 10 years, एक सजेशन था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के 10 साल के बाद, 1919 के 10 सालों के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रिव्यू कमेटी भेजेगी और फिर अगले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या रूल्स बनेगा। और इसके लिए साइमन कमीशन भारत आया। 1927 में साइमन कमीशन को स्टेब्लिश किया गया और 3 फरवरी डेट में लिख देता हूं, 1928 साइमन कमीशन
कमीशन Whiteman Commission कहा गया. Why? Because in Simon Commission there were 7 members. They were all white men. So that's why 11th December 1927 को डिसाइड किया गया कि इसका बहिष्कार किया जाएगा. इलाहाबाद में एक बैठक बुला के और इसकी पुनरावृत्ति कर दी गई कांग्रेस के एनुअल सेशन 1927 के मद्रास अधिवेशन में. और यहां पे साइमन कमीशन के पूर्ण कंप्लीट बायकॉट की बात स्वीकार कर ली गई. माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इंडियन नेशनलिस्ट डिसाइडेड दैट वी हैड टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन. साइमन कमीशन को बायकॉट किया गया. जगह जगह भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया. नाराज होकर के इंडियन सेक्रेटरी लॉर्ड बर्किनहेड ने एक स्टेटमेंट दिया कि आप लोग अपने लिए एक संविधान बना के दिखाइए. आप हमारा तो विरोध कर रहे हैं, आप अपने लिए एक संविधान भी नहीं बना सकते. अगर दम है तो एक संविधान बना के दिखाइए. दिस चैलेंज वॉज एक्सेप्टेड बाय द नेशनलिस्ट लीडर. 29 parties they come on the one floor, one table. बैठकें हुई, संविधान बनाने के लिए चर्चाएं हुई और इसी में विरोध भी हुआ. My dear student, you should never forget that the time 1920 to 1934, that was the second stage of the radical movement. भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण था. देश के हर भाग में क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थी. ब्रिटिशर्स एक तरफ उससे परेशान थे, दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर के बाद आई हुई इकोनॉमिक क्राइसिस से जो आर्थिक मंदी थी, डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन. And once, other hand, they had to face the extremist movement. Even Gandhi ji was resigned the active politics during 1922 and he focused the creative movement. But in 29, he again, after 6 years, joined the active politics and given the statement. This statement was very important. The Purna Swarajya would never come on its own. It had to be fight. और गांधी जी ने यहां पे क्लियर एक व्यू के साथ सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया. गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस के लिए साल्ट सत्याग्रह Why Gandhi accepted salt? Because salt is necessary needs for everyone. Either he poor or he prosperous or rich. So Gandhi ji choose this thing for their movement. Salt. Gandhi ji ने salt सत्याग्रह start किया. When Gandhi ji given the statement Purna Swaraj would never come on its own, it had to be fought for. In 1930, Gandhi declared that he would lead march to break the salt law. According to this law, the state had monopoly salt law. Okay, salt satyagrah, why it was started? Salt law, it was according to salt law. According to salt law, the state monopoly for purchase of salt. नमक बनाना और नमक को बेचना, यह अधिकार सिर्फ राज्य की मोनोपोली थी.
कोई भी व्यक्ति जो समुद्र के नजदीक भी है वो भी नमक नहीं बना सकता था। गरीब व्यक्ति के अफोर्डेबल नमक उनके अफोर्डेबल नहीं थी, उनके लिए वो उसको नहीं खरीद सकते थे। सो दैट्स व्हाई गांधी जी डिसाइडेड साल्ट फॉर देयर मूवमेंट। इसलिए गांधी जी ने साल्ट को अपने मूवमेंट के लिए लिया। माय डियर, यू शुड नेवर फॉरगेट that in 1930 Gandhi declared that would lead march to break the salt law. According to this law, the state had monopoly on the manufacture and sale of salt. Mahatma Gandhi, along with their followers, Gandhiji along with other nationalists reasoned that it was sinful to tax salt since it's such an essential item for our food. गांधी ने कहा कि नमक पे कर लगाना एक पाप है, जो हमारे खाने का मुख्य एक प्रमुख वस्तु है, उस पे इस तरह के टैक्स लगाना पाप है। और गांधी जी ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई। It is such an essential items for food. The salt march related the general desire of the freedom to specific grievance shared by everybody, and thus did not divide in the rich and the poor. Gandhiji and his followers marched over 240 miles. Gandhiji marched. Salt Satyagraha. Gandhiji marched with 78 followers, 241 कहीं 240 माइल्स की दूरी को गांधी जी ने मार्च किया। कहां से कहां तक? फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस? कहते हैं कि वो दूरी थी दो जगह की। वो जगह था साबरमती टू दांडी। साबरमती एंड दांडी बोथ प्लेसेज इन गुजरात। दांडी इज नाउ in the Navsari district. It is situated along with the seashore. So Gandhi decided that we have to what? हम नमक कानून तोड़ेंगे। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ मार्च किया। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए अपने स्टेप्स उठाए। गांधी जी and his followers marched over 241 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling sea water to produce salt. Boiling sea water to produce salt. My dear student, the British magazine Punch explained, they toned on Mr. Gandhi that Gandhi केतली में पानी गर्म करके क्या ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिला पाएंगे? कमेंट किया, टोंट मारा। लेकिन सडनली वी हैड सीन दैट दिस मूवमेंट वाइड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ब्रिटिशर्स फेल्ट दैट इज द स्ट्रेटेजिकल। एक क्या है? एक आर्थिक रूप से फेल्योरनेस है ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी जी की इस मूवमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ नहीं पाई। माय डियर स्टूडेंट, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट कि ये घटनाएं, ये चीजें, गांधी जी का स्टेप्स ऐसे हो रहा था। पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। अ बिजनेस फेडरेशन published a pamphlet on salt issue. Movement through brutal action against peaceful satyagrahis. Thousands were sent to jail. The combined struggle of the Indian people bore fruit with the Government of India Act of the 1935,
prescribed the provincial autonomy, and the government autonomy elections on the provincial legislature in 1937. The Congress formed the government in 7 out of the 11 provinces. My dear students, that was the reform. On that they decided that we have to take in some steps for controlling this movement. But you have never forget that why Gandhiji chose the SALT as their movement, for their movement. मैंने आपसे ये भी कहा, अब सिविल डिसोबीडियंस के लिए क्या क्या कॉजेज थे, व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ सिविल. अब थोड़ा सा इसको करते हैं सिविल डिसोबीडियंस के कॉजेज के बारे में. कॉजेज के बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं और फिर सिविल डिसोबीडियंस को समेट लेते हैं आसानी से. आपको ये पॉइंट याद रखनी है और फिर सिविल डिसोबीडियंस के कॉजेज देखते हैं. व्हाट वाज द कॉजेज. कॉजेज ऑफ दिस मूवमेंट. क्या क्या कॉजेस थे इस मूवमेंट के. अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कई बार इस चीज को चर्चा करते हुए कहा था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन, दुनिया में चारों तरफ डिप्रेशन था, आर्थिक मंदी फैल चुकी थी. और इस आर्थिक मंदी के लिए क्या महत्वपूर्ण था, कुछ कॉजेस थे इंडिया में जो हुए. The British apathy toward not accepting. The British apathy. मैं इसको मिटा दूं स्टेटमेंट को, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम है. कॉजेस देखिए, मैं एक लाइन में लिखूंगा 60 में, जितना छोटे में हो सकता है. कॉजेस. फर्स्ट, द ब्रिटिश apathy. The British apathy towards not accepting. Towards not accepting. Towards not accepting what? कहते हैं कि नेहरू रिपोर्ट. Nehru report by the end of 1929. By the end of 1929. First point. Second point, that was the immediate cause. ये क्या था? Immediate cause था. ये इमीडिएट कॉज था. देन आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड साल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930-31 स्टार्टेड. द इकोनॉमिक डिप्रेशन. इकोनॉमिक डिप्रेशन. इकोनॉमिक डिप्रेशन. Miserable lot of peasants. Third, miserable lot of the peasants and workers. वर्कर्स. फोर पॉइंट था इसका. अगर इसके कॉलेज में देखें तो सटायर द कंट्री ओवर. अभी एक और 27 प्रिजनर्स ऑफ मेरिट. 27 प्रिजनर्स ऑफ मेरिट. माय डियर स्टूडेंट, थर्ड, what? The miserable
lot of peasants and the workers' condition. And fourth immediate reason was the 27 prisoners of merit conspiracy case became the other factors of civil disobedience. The immediate causes of the civil disobedience was the British adhered towards not accepting the Nehru report by the end of 1929. That was the immediate causes. सिविल डिसोबीडियंस जब भी आप पढ़ें तो उसमें आप स्वराज मूवमेंट को जरूर याद रखें. आई मीन टू से दैट 1929 कांग्रेस लाहौर सेशन, द कंप्लीट इंडिपेंडेंट, दिस डिमांड, कंप्लीट इंडिपेंडेंट डिमांड, पूर्ण स्वराज्य की जो मांग की गई थी वो यूनिट थी. 3 घटनाएं सिविल डिसोबीडियंस में आती हैं. पहला नेहरू रिपोर्ट, दूसरा साइमन कमीशन और तीसरा आप कांग्रेस का लाहौर सेशन. इन तीनों को एक साथ लाइए और फिर आप सिविल डिसोबीडियंस को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. डांडी मार्च वाज द मेजर स्टेप विच वाज टेकन बाय मिस्टर गांधी. डांडी मार्च निकाला और इस तरह से ये मूवमेंट खत्म हुआ. तो ये सिविल डिसोबीडियंस को आप जैसे फ्रेम करें, अगर ये 3 मार्क्स में आते हैं तो आप 3 मार्क्स में करिए, अगर ये 2 मार्क्स में आते 1 मार्क्स में आते हैं तो 1 मार्क्स में करिए, 8 मार्क्स में आते हैं तो आप 8 मार्क्स में इसका आंसर इन सारे फैक्ट के आधार पे सिस्टमैटिक वे से लिख सकते हैं. यू हैव टू कंसिडर अबाउट दैट द पॉइंट्स वेयर यू हैव टू स्टार्ट टू, आई मीन टू से दैट की स्टार्ट टू फ्रेम द आंसर. कहां से आप शुरू करेंगे आंसर को फ्रेम करना? यू हैव टू स्टार्ट पर्टिकुलर पॉइंट. तो आप एटलीस्ट नेहरू रिपोर्ट से शुरू करिए. नेहरू रिपोर्ट 1928, लाहौर सेशन 1929, द डिमांड ऑफ गांधी जी वॉज डिनाइड बाय द ब्रिटिशर्स. गांधी जी लॉन्च्ड देयर मूवमेंट, दैट वाज सिविल डिसोबीडियंस. दैट्स ऑल. आप सिविल डिसोबीडियंस को पूरा करें, डांडी मार्च को लिखें और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931, दैट वाज द टाइम ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. और यहां से फेल्योरनेस ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आप खत्म करें. यहां पे एक पॉइंट गांधी इरविन पैक्ट को भी इसमें आप डाल दें, आपका आंसर अच्छे से फ्रेम हो जाएगा. सिर्फ फैक्ट को ही पकड़िए. अगर आप फैक्ट को ही पकड़ते हैं तो भी आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा. सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे. गुड बाय, टेक केयर.